Assalamualaikum. Welcome back to eLearning Point. Here is Mani. So today's my video is about second year commerce subject Commercial Geography Chapter 2 The Earth Lecture 1. So let's start. The Earth. The Earth is the third planet in distance outward from the Sun, believed to be about 4.56 billion years old. It is some 149,600,000 kilometers, 92,960,000 miles away from the Sun. It makes one revolution or one complete orbit of the Sun in about 365 days 6 hours. ज़मीन सूरज से बाहर के फासले पर तीसरा सैयारा है। तकरीबन 4.56 बिलियन ईयर्स पुरानी है। ये सूरज से तकरीबन 149,600,000 किलोमीटर 92,960,000 माइल दूर है। ये तकरीबन 365 डेज में 6 आवर्स में सूरज का एक मुकम्मल चक्कर या एक मुकम्मल मदार बनाती है। As it revolves, it rotates on its axis once every 24 hours. It has an equatorial circumference of 40,076 km, 24,902 miles. Its total surface area is roughly 509,600,000 square kilometer, 197 million square miles, of which about 71% is water. Earth's atmosphere consists of a mixture of gases, chiefly nitrogen and oxygen. जैसा कि ये घूमती है, ये हर 24 घंटों में एक बार अपने महवर पर घूमती है। इसका खिता इस्तिवा का तवाफ 40,076 किलोमीटर 24,902 माइल है। इसकी सतह का कुल रकबा तकरीबन 509,600,000 स्क्वायर किलोमीटर है। 197 मिलियन के मरकब पर मुश्तमिल होता है, ख़ास तौर पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। Earth's surface is traditionally subdivided into 7 continental masses. Continent, one of large land masses of the Earth: Africa, Antarctica, Asia, Australia, Europe, North America, and South America. The total land area of all the continents is around 148,647,000 square kilometers, which is 29% of the surface of the Earth. ज़मीन की सतह रवायती तौर पर 7 बराआज़मों में तकसीम होती है। बराआज़म यानी कॉन्टिनेंट ज़मीन के बड़े ज़मीनी हिस्सों में से एक होता है। ठीक है, ये कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन है। अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, शुमाली अमेरिका और जनूबी अमेरिका तमाम बराआज़मों का कुल ज़मीनी रकबा तकरीबन 148,647,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि ज़मीन की सतह का 29% है। These continents are surrounded by 5 major bodies of water called oceans. Oceans are large bodies of water constituting a principal part of the hydrosphere: the Arctic, Atlantic, Indian, Southern and Pacific Ocean. ये बराआज़म पानी के 5 बड़े अजसाम से घिरे हुए हैं, जिन्हें समुंदर कहते हैं। ओशन पानी का एक बड़ा जिस्म जिसका बुनियादी हिस्सा है हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, ये ओशन की डेफिनेशन है। आर्कटिक, अटलांटिक, इंडियन, साउथर्न एंड पैसिफिक ओशन इसमें शामिल हैं। द ओशन अबाउट 71% ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ द अर्थ कवर्ड विद ओशन, and as seen from the outer space it seems a blue sphere. This blue color is caused by reflection from the oceans. Due to this characteristic, it is sometimes referred to as the blue planet. The ocean समुंदर ज़मीन की कुल सतह का तकरीबन 71% समुद्रों से ढका हुआ है और जैसा कि बैरूनी खला से देखा जाता है, ये एक नीले रंग का करार लगता है। ये नीले रंग
समुद्रों से इनकास की वजह से यानी कि रिफ्लेक्शन की वजह से पैदा होता है। इस खसूसियत की वजह से इसे ब्लू स्क्वायर कहा जाता है, यानी द ब्लू प्लैनेट, ब्लू सियारा कहा जाता है। नंबर 1, पैसिफिक ओशन। It is the largest ocean of the world, extending from the Arctic in the north to Southern Ocean in the south, covering 169.2 million square kilometers. It is larger than all of the Earth's land area combined. Pacific Ocean ये दुनिया का सबसे बड़ा समुंदर है जो शुमाल में आर्कटिक से लेकर जनूब में जनूबी समुंदर तक फैला हुआ है। 169.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित है। ये ज़मीन के तमाम ज़मीनी रकबे से बड़ा है। नंबर 2, अटलांटिक ओशन। It is the second largest ocean, covering 106.4 million square kilometers with a coastline of 111,000 kilometers. It occupies about 20% of the Earth's surface. The ocean has some of the world's richest fishing resources, especially in the waters covering the shelves. Atlantic Ocean दूसरा सबसे बड़ा समुंदर है जो 106.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित है, जिसकी साहिली पट्टी 111,000 किलोमीटर है। ये ज़मीन की सतह के तकरीबन 20% पर काबिज है। समुद्र में दुनिया के सबसे अमीर तरीन माहीगिरी के वसाइल हैं, यानी कि फिशिंग रिसोर्सेज, ख़ास तौर पर शेल्फों को ढकने वाले पानियों में। नंबर 3, इंडियन ओशन। It is the third largest ocean, covering 3,556,000 square kilometers, or about 20% of the water on the Earth's surface. The ocean's continental shelves are narrow, averaging 200 kilometers, 120 miles in width. The average depth of the ocean is 3,890 meters, 12,760 feet. ये तीसरा सबसे बड़ा समुंदर है जो 73,556,000 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित है। ज़मीन की सतह पर मौजूदा पानी का तकरीबन 20% है। ये समुंदर की बराज़मी शेल्फें तंग हैं। इस समुंदर की बराज़मी जो शेल्फें हैं वो काफ़ी तंग हैं, नैरो हैं, जिनकी चौड़ाई औसतन 200 किलोमीटर 12,760 feet है। Number 4, Southern Ocean. It is the fourth largest ocean, covering 20,327,000 square kilometers. It has limited areas of shallow water. The Antarctica circumpolar current moves perpetually eastward, chasing and jointly by itself. It is the world's longest ocean current, transporting 130 million cubic meter per second, 100 times the flow of the entire world's rivers. Southern Ocean ये चौथा सबसे बड़ा समुंदर है जो 20,327,000 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित है। इसमें अथले पानी के महदूद इलाके हैं, शैलो वाटर जो होता है। इसमें अंटार्कटिक सर्कुमपोलर करंट मुस्तकिल तौर पर मशरिक की तरफ चलता रहता है और ख़ुद ही इसमें शामिल होता है। ये दुनिया का सबसे तवील समुद्री करंट है। 130 मिलियन क्यूबिक मीटर फी सेकंड पूरी दुनिया के दरियाओं के बहाव से 100 गुना ज़्यादा नकलो हमल करता है। आर्कटिक ओशन It is the smallest of the world's 5 major oceans, almost completely surrounded by Eurasia and North America. It is largely covered by sea ice throughout the year. Its temperature and salinity vary seasonally as the ice covers melt and freezes. Arctic Ocean ये दुनिया के 5 बड़े समुद्रों में से सबसे छोटा समुद्र है। तकरीबन मुकम्मल तौर पर यूरेशिया और शुमाली अमेरिका से घिरा हुआ है। ये साल भर समुद्री बर्फ से ढका रहता है।
इसका दर्जा हरारत और नमकियात मौसमी तौर पर मुख्तलिफ होते हैं क्योंकि बर्फ़ का अखाता पिघलता है और जम जाता है। The area has a fragile ecosystem which is slow to change and slow to recover from disruptions or damage. The Arctic Ocean has relatively little plant life except from phytoplankton, nutrient from river and the current of the Atlantic and Pacific Ocean provide food for the Arctic phytoplankton. इस इलाके में एक नाजुक माहौलियाती निज़ाम है जो बदलने में सुस्त और रुकावटों या नुकसान से बाज आने में बेसस्त है, यानी कि कमज़ोर है। आर्कटिक ओशन में फाइटोप्लैंक्टन के अलावा पौधों की ज़िंदगी निस्बतन कम है। दरियाओं के ग़ज़ाइय जुज़ा और बहर यानी कि ओशंस और हमारे पास ओशंस हैं अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशंस, वो जो हैं आर्कटिक फाइटोप्लैंक्टन को फूड प्रोवाइड करते हैं। कंपास are devised for determining the direction of magnetic north, but usually we use it for finding the basic direction north, south, east and west. The magnetic compass, which has been in use as an aid to navigation probably since the 2nd century BC, consists of a magnetic needle balanced on a point, allowing it to pivot freely. कंपास मकनातीसी शुमाल की सिमत का तयन करने वाला आला, लेकिन आमतौर पर हम इसे बुनियादी सिमतों शुमाल, जनूब, मशरिक़ और मग़रिब को तलाश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मकनातीसी कंपास जो मुमकिना तौर पर दूसरी सदी क़ब्ल मसीह से नेविगेशन में मदद के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, एक मकनातीसी सुई पर मुश्तमिल होता है जो एक नुक्ता पर मुतवाज़िन होता है जिससे वो आज़ादाना तौर पर महवर हो सकता है। यानी कि ये बेसिकली डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। The south end of the magnetic indicates magnetic north, as shown on a card called a compass card, marked with the points of the compass and fixed below it. मकनातीस का जनूबी सिरा मकनातीसी शुमाल की तरफ इशारा करता है। जैसे कि एक कार्ड जिसे कंपास कार्ड कहा जाता है पर दिखाया गया है कि कंपास के पॉइंट्स और इसके नीचे तयशुदा है। Thanks for watching. Kindly subscribe and like my channel.